Welcome to the class of physics. Today we are going to do the topic how we can connect two or more than two capacitors. Okay, that is called grouping or combination of capacitors. Grouping or combination of capacitors. Okay, in class 10th we have studied that resistance in series, resistance in parallel. How can we connect the resistors in series and resistors in parallel? Similarly, based on the same topic, we can connect the capacitors in series as well as parallel. So there can be two combinations in series or parallel. So one by one we will discuss it. So first of all we are going to discuss series combination of capacitors. Series combination of capacitors का series combination. So what type of capacitor we will use? We will use parallel plate capacitor, and this is the symbol of parallel plate capacitor. This is the symbol of parallel plate capacitor. Two plates connected to the terminals of the battery. Okay. So how can we recognize that whether the two capacitors are in series or are in parallel? So what is the method to recognize them? Let us discuss. Okay, if we want to connect two capacitors in series, then it must be there that right plate of first capacitor is connected to the left plate of second capacitor, or more than two, or second plate of second capacitor, right plate of second capacitor can be connected to the left plate of third capacitor. So then they are called in series combination. They are called in series combination. If right plate of one capacitor is connected to left plate of other capacitor, they are called in series, as so on, और आगे ऐसे चलता जाए. They are called in series and having the same charge when connected to a battery. और बैटरी से कनेक्ट करने पर इनको दोनों कैपेसिटर्स का जो टोटल चार्ज है वो सेम रहना चाहिए, तभी ये माना जाएगा दे आर इन सीरीज, अदरवाइज दे आर नॉट इन सीरीज. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैपेसिटर C1, दिस इज कैपेसिटर C2. व्हेन वी आर कनेक्टेड इनटू द बैटरी, दिस इज कॉल्ड बैटरी. नाउ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव से जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो ये दोनों पहले अनचार्ज थे कैपेसिटर्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट जैसे हमने बैटरी से वो कनेक्ट किया तो दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो ड्यू टू इंडक्शन दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, एंड दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू राइट प्लेट ऑफ सेकंड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड. सो ड्यू टू दिस इंडक्शन दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो left plate of capacitor C1 is positively charged, right plate of it negatively charged, and left plate of second capacitor that is positively charged and right plate of second capacitor is negatively charged. As this is connected to negative terminal, this is connected to positive terminal. Charge on both the capacitors will be same. If battery has a voltage V, battery has a voltage V. Okay, if this is having charge Q, this is also having charge Q. चार्ज दोनों के ऊपर सेम रहना चाहिए. बट when we connect the capacitors in series, potential will be different applied to them. जो इसको पोटेंशियल मिला, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V1, इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला दैट इज V2. बट जो दोनों कैपेसिटर्स को पोटेंशियल मिला, उन दोनों पोटेंशियल का सम बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए. इट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. इट मीन्स जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वही डिवाइड हो जाएगी. इक्वली डिवाइड होगी ये जरूरी नहीं है. इक्वली तब डिवाइड होगी जब कैपेसिटेंस इक्वल होगा. जब कैपेसिटेंस इक्वल नहीं है, दोनों का अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा. ओके, लेकिन जितना भी होगा इन दोनों का सम टोटल बैटरी की वोल्टेज के बराबर बनेगा. मान लो बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट है, सपोज करो 6 इसको मिल गया, 4 इसको मिल गया, 4 इसको मिल गया, 6 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, 7 इसको मिल गया, 8 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया. टोटल सम 10 ही रहेगा अगर बैटरी की टोटल वोल्टेज 10 है तो. सो दोनों का पोटेंशियल का जो सम है वो मिलेगा आपको बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर.
सो बट एज वी नो Q इज इक्वल टू क्या होता था CV, कैपेसिटेंस में हमने किया। सो व्हाट विल बी V इज इक्वल टू Q बाय C। पोटेंशियल क्या फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q बाय C। सो पोटेंशियल यहाँ पे टोटल पोटेंशियल है बैटरी का, तो टोटल चार्ज दैट इज Q और टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C। टोटल कैपेसिटेंस को हमने C मान लिया। V1 किसका पोटेंशियल है, फर्स्ट कैपेसिटर का, तो पोटेंशियल का मतलब चार्ज बाय कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। चार्ज Q1, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज C1। V2 सेकंड का पोटेंशियल है, तो सेकंड का चार्ज, तो सेकंड का कैपेसिटर। सेकंड का चार्ज है Q, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है, जितना बैटरी का टोटल चार्ज छोड़ रही है बैटरी उतना ही इनको चार्ज मिलता है। सो Q बाय C2। ओके, Q आप कॉमन निकाल सकते हो राइट हैंड साइड में और कट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। सो व्हाट विल बी टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 1 by C1 plus 1 by C2। इट मींस if you want to calculate total capacitance of the capacitors connected in series, total capacitors of the capacitance of the capacitors connected in series can be calculated by 1 by C. C is total capacitance, so 1 by C is equal to 1 by C1। C1 is capacitance of first capacitor, C2 is capacitance of second capacitor। अगर और थर्ड होता तो 1 by C3 और आ जाता प्लस में, n तक होता तो प्लस में अप टू 1 by Cn तक चलता। मतलब जितने भी कैपेसिटर सीरीज में हैं उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करो तो जो टोटल कैपेसिटेंस भी आपका रेसिप्रोकल में आएगा। अगर आप टोटल कैपेसिटेंस निकाला जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करो, यू विल गेट द C। ओके, सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं कि फर्स्ट इज चार्ज will be same on each capacitor। हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल विल बी डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। अगर C1 C2 की वैल्यू अलग लगेगा, C1 और C2 अगर कैपेसिटेंस बराबर है तो यहाँ देख लो चार्ज बराबर है, कैपेसिटेंस भी अगर बराबर है तो पोटेंशियल भी बराबर ही होगा। अगर कैपेसिटेंस बराबर है तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होगा। अगर 10 है तो 5 डिवाइड होगा। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग ही डिवाइड होगा। ओके, सो दीज टू आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस आफ्टर डूइंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, now we are doing parallel grouping of capacitors। parallel grouping या parallel combination of capacitors। how can we connect two or more than two capacitors in parallel combination? Okay, so how is it possible? Let us look at it. If we have two capacitors, parallel plate capacitors, if we want to connect them in parallel combination, then left plate of each capacitor is connected to one terminal, and if right plate of each capacitor is connected to same terminal। इट मीन्स जितने भी कैपेसिटर्स हैं, दो हैं, तो दोनों की लेफ्ट प्लेट एक ही टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए और दोनों की राइट प्लेट भी अगर एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हो, एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो, देन दे आर कॉल्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स देन नाउ these two capacitors, capacitance C1 and C2 are in parallel combination। they are in parallel combination। okay, so if we have three capacitors, all the left plate of three capacitors are connected to the same point and right plate to the same point, they are called in parallel combination। now if we are connecting them with a battery, this is the potential terminal of battery, this is negative terminal of the battery। पॉजिटिव लेफ्ट दोनों पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इट मींस लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव से कनेक्ट है दोनों राइट, तो नेगेटिव राइट साइड ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स, राइट प्लेट ऑफ बोथ द कैपेसिटर विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बट if the battery voltage is V, in parallel combination voltage will be same to every capacitor। so इसका वोल्टेज भी V होगा, इसका वोल्टेज भी V होगा। सीरीज में चार्ज सेम रहता है कैपेसिटर में जितना बैटरी चार्ज छोड़ती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है वो सभी के पास सेम रहती है, बट चार्जेस आर डिफरेंट।
इसके ऊपर भी चार्ज डिफरेंट रहेगा, इसके ऊपर भी चार्ज डिफरेंट रहेगा। ओके, देन व्हाट विल बी, अगर बैटरी चार्ज छोड़ रही है Q, इसको चार्ज मिल रहा है Q1, इसको चार्ज मिल रहा है Q2, तो जो दोनों का चार्जेस होंगे उनका सम बैटरी के टोटल चार्ज के बराबर आएगा। सीरीज में क्या था, वोल्टेज का सम बैटरी के टोटल वोल्टेज के बराबर था, पैरेलल में जो चार्ज बैटरी के चार्जेस हैं, चार्जेस का सम बैटरी के चार्ज के बराबर होगा। ओके, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। नाउ एज वी नो Q इज इक्वल टू CV, तो अगर हमें Q का मतलब टोटल चार्ज का मतलब टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज भी है, Q इज इक्वल टू CV होता है। और हमने Q लेना है यहाँ पे, Q क्या है, टोटल चार्ज का मतलब टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल। Q1 का मतलब है चार्ज गिवन टू फर्स्ट कैपेसिटर, तो अगर हमने फर्स्ट कैपेसिटर का ही निकालना है चार्ज, तो इट मींस CV होता है, तो कैपेसिटेंस भी फर्स्ट का, पोटेंशियल भी फर्स्ट का, इट मींस C1V प्लस सेकंड में C2V। सेकंड का चार्ज निकालना तो सेकंड का कैपेसिटेंस इनटू सेकंड का पोटेंशियल। सो इन तीनों में पोटेंशियल दोनों में कॉमन निकल जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी C is equal to C1 plus C2. It means if we have two or more than two capacitors are connected in parallel, then their equivalent or total capacitance can be calculated by simply adding the capacitance of each capacitor, C1 plus C2, थर्ड है तो प्लस C3, nth है तो अप टू Cn। इट मीन्स अगर हमने सीरीज में निकालना है तो रेसिप्रोकल करके ऐड करो कैपेसिटेंस को, अगर आपने पैरेलल में टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो सिंपली उनको ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। ओके, सो व्हाट आर द टू मेन पॉइंट्स ऑफ द कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल? फर्स्ट पॉइंट इज potential will be same of each capacitor, हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी सेम, वो सभी का सेम रहेगा। सेकंड इज चार्ज विल बी डिफरेंट ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर को जो चार्ज मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। सीरीज में से उल्टा था, सीरीज में चार्ज सेम मिलता था, पोटेंशियल डिफरेंट था। पैरेलल में उल्टा हो जाता है, पोटेंशियल सेम मिलता है जितना बैटरी का है और चार्ज डिफरेंट मिलता है हर एक कैपेसिटर को। सो दिस वाज द टू टॉपिक्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। So now we are doing the numericals based on capacitance of capacitor connected in series or parallel. Okay, so first of all we are going to write the formula. So what are the formulas? So formulas are formula used, अभी हमने किया ही है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अगर सीरीज में हो दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 अप टू 1/Cn तक रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है। और अगर हम इसी को पैरेलल में करना चाहें दैट इज पैरेलल grouping, or you can write it as combination of capacitors, that will be C is equal to C1 plus C2 plus C3। इनमें जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सभी के कैपेसिटेंस का आप सम कर दो, सिंपली यू विल गेट दी टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सम ऑफ द अदर फॉर्मूला यू कैन आल्सो यूज, Q is equal to CV भी हम इसमें यूज करेंगे कभी ना कभी, देखिए आप इसमें। ओके, सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन the grouping of capacitors are very much important. So let us do the first numerical. So you are given two numericals, capacitors in first numerical. You are given two capacitors of 3 microfarad and 2 microfarad are connected in series. Statement लिखा हुआ है, two capacitors of capacity 3 microfarad 2 microfarad respectively are connected in series. Calculate the equivalent capacitance. Equivalent capacitance आ जाए, total capacitance word आ जाए, आपने total capacitance ही निकालना है। So in series combination, ये series combination में given है आपने को। So what will be total capacitance series combination? As we know, we have two capacitors, that is 1/C1 plus 1/C2, 1/C1. C1 is 3 microfarad, 3 plus 1/2. Taking LCM 6
it will become 2 plus 3, that becomes 5 by 6 microfarad. So this is the value 1 by C, but we have to calculate the total capacitance. Total capacitance is C, so C is 6 by 5 microfarad. So we will get the total capacitance, that is 6 by 5 microfarad. 6 by 5 microfarad. Okay, so this is the simplest first numerical based on the series combination. So let us do the another numerical. Statement is numerical 2. A 0.5 microfarad, a 0.5 microfarad कैपेसिटर, तो यूनिट से पता चल जाता है माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है, is connected in parallel to a capacitor, to a 0.75 microfarad capacitor, and this combination is joined to 100 volt DC source. बैटरी एक DC सोर्स ही होती है. Calculate charge taken from the source. Charge taken from the source and charge on each capacitor. क्या क्या हमें इसमें कैलकुलेट करना है, क्या हमें गिवन है, देखिए. A 0.5 microfarad capacitor, a 0.5 microfarad capacitor, तो एक कैपेसिटर हो गया. So what we are given with C1 is equal to 0.5 microfarad, C2 is 0.75 microfarad, and this combination is joined to 100 volt. और बैटरी कितनी दे रखी है अपने को, 100 volt. DC source. Calculate charge taken from the source. Charge taken from the source, पहले इसका फिगर बनाते हैं. तो दोनों को पैरेलल में लगा हुआ है. पैरेलल में अब हमें पता है कैसे लगाते हैं. यहाँ बना रहा हूँ साइड में. दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड. दोनों लेफ्ट साइड की प्लेट एक से कनेक्ट होंगी, राइट की एक से कनेक्ट होगी. पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं. ओके, सो दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट. दिस इज द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट. दिस इज C1, दिस इज C2. कैलकुलेट चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स. ये सोर्स है, इससे कितना चार्ज लिया गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज. ओके, एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. और हमने Q1 और Q2 भी निकालना है. क्लियर. तो हमें टोटल चार्ज अगर निकालना है, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू CV से निकलेगा. टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज चाहिए. टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज. टोटल वोल्टेज तो हमें पता 100 वोल्ट, टोटल कैपेसिटेंस नहीं पता, तो पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे. पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला दैट इज C1 प्लस C2. इट विल बिकम 0.5 एंड 0.75. 0.5 0 हो गया, मतलब ये 0.75. ओके, 5 7 5 12 2 and 1.25 microfarad. Total capacitance is 1.25 microfarad. This is the total capacitance. Now we can calculate the total charge. Total charge is Q is equal to CV. Total C is 1.25 microfarad. It means micro means 10 to the power minus 6 into V. voltage is 100. 100 को हम 10 to the power 2 लिख सकते हैं. So it will become 1.25 into 10 to the power minus 4 कूलम. चार्ज कैसे यूनिट कूलम होती है, 1.25 into 10 to the power minus 4 कूलम. Okay, this is the total charge. Now what we have to calculate, we have to calculate the charge on each capacitor. अगर हमने इसको भी चार्ज निकालना है, इसका भी चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला Q is equal to CV.
तो अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज निकालूं तो फर्स्ट का ही कैपेसिटेंस और फर्स्ट की वोल्टेज है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इट मीन्स C1 तो हमें दिया हुआ है दैट इज 0.5 माइक्रोफैराड. ओके, वी कैन राइट इट एज 0.5 into 10⁻⁻6 फैराड और वोल्टेज 100 वोल्ट है, 10 to 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सभी के पास सेम रहती है. सो व्हाट विल बी कैपेसिटेंस दैट इज Q1 is equal to C1 V1. C1 is 0.5 into 10⁻⁻6 into 10 to 2. So 0.5 into 10⁻⁻4 coulomb. This is the charge on first capacitor. So charge on second capacitor, second का capacitance that is 0.75 micro to 10⁻⁻6 into voltage वही है 10 to 2. So it will be 0.75 into 10⁻⁻4 coulomb. So we have calculated the charge total and charge on each capacitor. Okay, so this is the second numerical based on series and parallel combination. So this is the today's topic. We will continue the numerical session from the coming tomorrow's lecture. Okay, in tomorrow के lecture में भी हम यही numericals ही करेंगे. A lot of different type of numerical based on capacitance are left to be covered. Okay, till then have a nice day.